यार ये तो होना ही था। आई थिंक मैं अपसेट होने की बजाय मुझे थोड़ी हंसी आ रही है, क्योंकि जो बांग्लादेश ने अपने साथ क्या किया है ना, जैसे कहते हैं ना कि जिस टानी में बैठते हैं वो तुलसीदास थे, कालिदास थे, जिन्होंने वही टानी काटी थी। उनको समझना इनका इसमें फायदा क्या। एक लड़के को आपने मुस्तफिजुर को आपने आईपीएल से निकाला है और ऐसी सांस रूठी है कि पूरे घर को जला दिया उन्होंने। और आप सोच नहीं रहे कि प्लेयर्स का कितना नुकसान है। दे हैव बीन ट्रेनिंग, they have been practicing to prepare for the World Cup. As it is, Bangladesh is not somebody who I rate as a contender anyway. ऐसी भी कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे वो, पर वो बात नहीं है। एक वर्ल्ड क्रिकेट ऑर्डर था, एक प्रोपराइटी थी जो चल रही थी अब तक। वो इन्होंने क्या किया, मतलब कि अपना नाक काट के अपने मुंह की बेइज्जती करने वाला हाल है और जो पॉलिटिकल बना दिया एंगल। तो वो भी जो प्लेयर्स जो है, बोर्ड जो है, उनकी भी चल नहीं पा रही है, क्योंकि अब बांग्लादेश ने ऐसा एक इशू बना लिया और वो चाबी दे रहे हैं पाकिस्तान वाले। तो ठीक है, तो उनके चाबी से उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो तो लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, वर्ल्ड कप चले जाएगा, किसी ने बांग्लादेश को मिस नहीं करना। स्कॉटलैंड आई है, आप देखेंगे कि वो भी अपने से ऊपर उठ के खेलेंगे और क्या पता इसमें वर्ल्ड क्रिकेट की भलाई हो, क्योंकि आपको ऐसा मौका मिला, क्या पता एक टीम रेडी हो जाए, क्योंकि बाकी टीम्स रेडी हो नहीं रही। कीनिया भी चलेगी, जिम्बाब्वे चलेगी, ऐसी कोई नई टीम आई नहीं है। तो स्कॉटलैंड को खेलने का मौका मिल रहा है, क्या पता वो अपने से ऊपर उठ के खेलें। सो आई थिंक दिस ब्लेसिंग इन दिस गाइज, बट फॉर बांग्लादेश, और वो कह रहे हैं द रीजन विच दे हैव गिवन इज दैट इट्स अ सिक्योरिटी कंसर्न, एंड which is very flimsy and laughable, because they've 2 million maybe around Bangladeshis living in India, and they are more secure in India than in Bangladesh. So just have a thing, because you're looking like fools now by doing this and taking up sulking with India, who have supported you, who have actually helped you make the country you are. You are East Pakistan. So I feel that this is a sad situation, and I think ICC has done the right thing. BCC has done the right thing. They put their foot down. You can't mess around people. You can't blackmail at the last hour just because you feel like it. And if you wanted to make an issue, I think Bangladesh should have had the guts, to say it out loud. Yes, we are. It's a political thing. We are upset with India, so we are pulling the team. Don't say it's a security concern, because there are 10,000 Bangladeshis living around my house, and just if they are not feeling secure, they should be back in Bangladesh. Or if you feel that you have become such a big country and you can show us the muscle, please take all your Bangladeshis out of India. Let me see when we talk. Just by removing your team, you have not got any brownie points in the world geopolitics. I think Bangladesh deserves all the sanctions, because, and let the political regime there suffer, because, they might feel that cricket is something part of it, but Bangladesh is a spot in the world, sports, is because of cricket only. Nobody knows in the sporting world who and what Bangladesh does. Have they ever won any medals in Olympics? Never. So Bangladesh has got their identity in world sports because of their cricket team. And now you have reduced them to jokers. So now you have to suffer the financial consequences. एक तो जो आपको $3 लाख डॉलर मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे पार्टिसिपेशन के, तो बाकी जो आपको सैंक्शंस लगेंगे अलग। इंडिया तो जाएगा नहीं, उनका एक कैश का होता है व्हेन इंडिया टूर्स बांग्लादेश, इट इज ऑन टेलीविजन, सो ऑल द इंडियन स्पॉन्सर्स fund the gravy train. Now that is not going to happen. So the Bangladesh board was thriving on India touring, which is not going to happen. बुला लो बांग्लादेश को, श्रीलंका को, देखते हैं कितने पैसे बनाते हो। तो आपने चारों तरफ से देखा नहीं है। इस समय भी लास्ट मौका दिया गया था कि आप चलिए बोलते, अपना थोड़ा बड़प्पन दिखाते कि चलिए कोई बात नहीं जी, ठीक है, ओके, वेलकम, ठीक है, बिकॉज यू गॉट सो मच गोइंग ऑन है। एंड देन करंट सिचुएशन इज वॉट एवर, बिकॉज देयर वॉज एन इशू with franchisee. It's a business model, and a lot of outrage was there. So KKR was also right to take him out. BCCI have a right to ask them, because there was a public outcry against what was happening. Don't make an issue, and if you want to make an issue, don't start what you can't finish. I must give you advice to Bangladesh. See, it all augurs very well for India, the kind of form which Abhishek is doing very well. ठीक है, बट देन आफ्टर ये ईद के बाद रोजे भी आते हैं, रोजे के बाद ईद आती है, तो अगर आपने बड़ा स्कोर बनाया तो कल आप डक पे भी आउट हो सकते हो। तो इसीलिए मैं कह रहा था, व्हेन पीपल आर क्वेश्चनिंग कि स्काई इज नॉट इन फॉर्म, आई से ही इज अ गुड प्लेयर, इज डिलीवर्ड, ही विल डिलीवर। पीपल आर सेइंग द सेम थिंग अबाउट विराट कोहली लास्ट वर्ल्ड कप। आई वाज टेलिंग कि कॉमेट द आवर, कॉमेट द मैन। जो बड़ा प्लेयर है ना, वो बड़े मैच में आपको करा के देगा। तो आप एक मैच के, 2 मैच के फेलियर से, और T20 में बहुत ज्यादा चांस होता है फेलियर का, क्योंकि आपने हर बॉल पे शॉट मारना है, तो परसेंटेजेस आपकी खराब होती हैं, तो उसमें आउट हो सकते हो। जिस दिन आपका दिन होगा तो वो चौका चला जाएगा, इधर मारोगे उधर जाएगा। तो T20 में ऐसा नहीं होता फॉर्म। आप मेरे टेस्ट में, क्योंकि टेक्निक की प्रॉब्लम है, तो वो टेस्ट मैचेस में, वनडे में आपकी फॉर्म उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कुछ टेक्निक, कुछ बैलेंस ऑफ है, तो दैट द फॉर्म गोज, देन व्हेन यू करेक्ट इट, देन द फॉर्म कम्स बैक। सो आई थिंक पीपल हैव टू रियलाइज इन T20 नेवर टॉक अबाउट फॉर्म, इट इज ऑल अबाउट लक। एंड इफ यू इन्वेस्टेड इन अ गुड प्लेयर and he is identified and he is proven to be a good player,
Don't just dish them at the altar. Why talk about Sky Yadav's lack of form? And now with one score, everybody is happy. We should not be so immature. एक तो एक नया ही मुद्दा शुरू हो गया. मैं तो हैरान हूं कि भैया इसमें देखिए कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान को बांग्लादेश सपोर्ट नहीं कर रहा था. आईसीसी की मीटिंग्स में कई बार बांग्लादेश को दुत्कारा है, तो बांग्लादेश एब्सटेन करता है. तो अभी एकदम से क्या प्यार आया है कि देखिए कि इंडिया से लड़ाई होते ही तो मेरे दुश्मन जो है वो दोस्त बन गए हैं. और ये तो अभी नकवी साहब से पूछिए कि अपनी खैर बनाएं, आप अपनी टीम को पुल आउट करने की बातें कर रहे हैं. वैसे भी उन्होंने जीतना तो है नहीं, पाकिस्तान का जो हाल है तो उन्हें पता है. तो चलिए शायद कम बेइज्जती होगी क्योंकि फिर इंडिया से हारेंगे, ठीक है. और क्या पता किसी छोटी मोटी टीम से हार जाए, पाकिस्तान टीम का कुछ पता नहीं है. तो आई थिंक दिस इज जस्ट अ ब्रवाडो एंड इट्स फुलिश ब्रवाडो एट बेस्ट टू जस्ट eyeball ICC and blackmail the whole cricketing world order. If you want to go down this road, and that's the problem, because this Bangladesh decision is also a government decision. It's a political decision. And I think Pakistan's mouthpiece of cricket, unfortunately, is somebody who's the head honcho of the politics system in their country. So I think this what they're doing is now is they're just using cricket and their collateral damage players. Who will be the collateral damage? Because players will suffer. इनका कुछ आता नहीं है क्योंकि ये तो पॉलिटिकल सरमाए हैं, तो अपना काम चलता रहेगा इनका. आपने एक क्रिकेट को मुद्दा बना के अपने मुंह छुपर कर ली, तो नुकसान को क्योंकि उनको लग रहा है कि बड़ा हमारा ब्राउनी पॉइंट बढ़ेगा, देखिए हमने बांग्लादेश को सपोर्ट करी है. अबे इन्होंने तो मारा था जाके लाखों बांग्लादेशियों को जब भारत ने इन्हें दिलवाई थी इंडिपेंडेंस, ठीक है. मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करा था इंडिया ने, तब तो मुक्ति वाहिनी को याद नहीं आया. अब पाकिस्तान को प्यार आ गया एकदम. तो बेसिकली ये होता है कि भैया मेरी लड़ाई होगी किसी बड़े बदमाश से, तो मेरे को छोटे मोटे बदमाश अपने साथ रखने हैं, तो इसलिए वो बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं. तो चोर चोर मुसेरे भाई होते हैं, तो वो हाल है.